Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 29. Today's topic is about the transaction exposure and we are going to do certain numericals and exercises. आज की क्लास का एजेंडा ये है कि first of all I am going to give you a brief about the point and counter point. एक छोटा सा sort of short सा एक case study है and then we will move forward towards doing exercises and problems. आपके सामने मैं different तरह के exercises and problems करूँगी. कुछ उसमें से न्यूमेरिकल्स हैं, अपने कैलकुलेटर्स आप अपने पास रखेंगे इस लेक्चर के लिए. कुछ उसमें से न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ उसमें से थ्योरेटिकल डिस्कशन बेस्ड चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट काउंटर पॉइंट. शुड एन एमएनसी ओवर हेजिंग? Should an MNC risk over hedging? Point is yes, MNCs have some unanticipated transactions that occur without any advance notice. Point ये है कि कुछ MNCs की transactions ऐसी हैं, they are unanticipated transactions that occur without any advance notice, जो कि बगैर किसी advance notice के हो सकती हैं. They should attempt to forecast the net cash flows in each currency due to unanticipated transactions based on the previous cash flows for that currency in a previous period. अच्छा, ये कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं? इन ट्रांजेक्शंस को किसी हद तक आप फोरकास्ट कर सकते हैं based on the previous information that you already have. Even though it would be impossible to forecast the volume of these unanticipated transactions per day, it may be possible to forecast the volume on a monthly basis. हालांकि ये इम्पॉसिबल है, इवन दो इट इज इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट द वॉल्यूम ऑफ दीज अनएंटिसिपेटेड ट्रांजैक्शंस, लेकिन यह है कि इन वॉल्यूम्स को आप किसी हद तक मंथली बेसिस के ऊपर थोड़ा बहुत फोरकास्ट कर सकते हैं. रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट ये है कि शुड एमएनसी रिस्क ओवर हेजिंग, क्या एमएनसीज को रिस्क को ओवर हेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. पॉइंट उसमें यह है कि अनएंटिसिपेटेड ट्रांजैक्शंस को किसी हद तक फोरकास्ट किया जा सकता है, इफ नॉट ऑन दी regular basis, daily basis, but to some extent on monthly basis you can still forecast them. जब आप उनको forecast कर सकते हैं तो उसके लिए आप ये है कि उनको ओवर मंथ आप उनको forecast कर लें. अनएंटिसिपेटेड ट्रांजैक्शंस का मतलब यह है कि जिनकी आपको बहुत ज्यादा उम्मीद ना हो या जो एकदम से कहीं से रिकर हो जाएं. So for example, if an MNC has net cash flows between 300,000 and 400,000 Philippines pesos every month, it may presume that it will receive at least 300,000 pesos in each of the next few months unless conditions changes. अच्छा, अगर ऑन एवरेज 300,000 से 400,000 तक की एक ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम 300,000 की ट्रांजेक्शन्स तो होंगी. अगर हम ये कहें कि ऑन एवरेज हमारी 300,000 से 400,000 तक की ट्रांजेक्शन्स हैं तो हम ऑन एवरेज कह सकते हैं कि मे बी इट इज गोइंग टू बी 300,000 एट लीस्ट. Thus it can hedge a position of 300,000 in pesos by selling that amount of pesos forward or buying put options on that amount of pesos. Any amount of net cash flow beyond 300,000 pesos will not be hedged, but at least the MNC was able to hedge the minimum net cash flow payments. तो पॉइंट ये है कि आप जरूर hedge कर लें क्योंकि एंटिसिपेटेड ट्रांजेक्शन अगर लेट से ऑन एवरेज जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ 300,000 से 400,000 के दरमियान है तो आप एटलीस्ट 300,000 को hedge कर लें by entering into certain forward agreements and certain ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. अब वो जो आपकी हो जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने मिनिमम को तो सेव कर लिया बाय एंटरिंग इनटू सर्टेन फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स एंड सर्टेन ऑप्शंस. तो बाकी जो आपकी जो मिनिमम पॉसिबल या जो आपकी एंटिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने हेज कर लिया बाय यूजिंग रिस्क डेरिवेटिव्स. काउंटर पॉइंट, अब इसी पॉइंट के अगेंस्ट एक काउंटर पॉइंट है. No, MNCs should not hedge unanticipated transactions. When they overhedge the expected net cash flows in a foreign currency, they are still exposed to the exchange rate risk. अब काउंटर पॉइंट ये है कि MNC को अपना unanticipated transactions को hedge नहीं करना चाहिए. Why? When they overhedge the expected net cash flows in a foreign currency, they are still exposed to the exchange rate risk. कि वो फिर भी अगर वो अपने आप को hedge कर भी लेते हैं तब भी वो exchange rate risk से दो चार रहते हैं.
If they sell more currency short from the forward contract than their net cash flows, they will adversely be affected by an increase in the value of currency. Their initial reasons for hedging were to protect against the weakness of the currency, but the over-hedging described here would cause a shift in their exposure. अब काउंटर पॉइंट ये कहता है कि अगर आप ओवर हेजिंग करने जा रहे हैं तो उससे आपका रिस्क एक्सपोजर कम नहीं होगा बल्कि और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट. सो ओवर हेजिंग डज नॉट इंसुलेट एन एमएनसी अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क. ओवर हेजिंग जो है वो इट डज नॉट इंसुलेट एन एमएनसी अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट रिस्क. काउंटर पॉइंट ये कहता है कि ओवर हेजिंग करने से आपको एक तरह से आप ये कह लें कि जब आप अनएंटिसिपेटेड ट्रांजेक्शंस की हेजिंग करते हैं तो उसका मतलब ये आप ओवर हेजिंग कर रहे हैं. तो ओवर हेजिंग से कई दफा ये होता है कि आप एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से और भी ज्यादा सेंसिटिव अपने आप को बना लेंगे. तो इसलिए बेहतर यह है कि आप हेजिंग ना करें उस लिहाज से. इट जस्ट चेंजेस द मीन्स बाय विच द एमएनसी इज एक्सपोज्ड. तो जिस तरह एमएनसी का एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हेज द रिस्क. सो द डिस्कशन इज ऑन. आप इसमें अपनी राय दें कि व्हाट डू यू वांट. कुछ स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट को फेवर करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स इसमें काउंटर पॉइंट को फेवर करेंगे. द बेसिकली द पर्पस इज कि आपका मैनेजमेंट का रिस्क एवर्जन क्या है. आप एज एन इंडिविजुअल और एज अ मैनेजर आपका रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी कितना है और आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड कैसा है. आप उस लिहाज से डिसाइड करेंगे कि वेदर you are going to do this hedging or you are not going to do this hedging. So this was about the counterpoint and point. Now let's start doing with some exercises and numericals of the transaction exposure के हवाले से हम कुछ पढ़ेंगे. डेरिवेटिव यूजेज के हवाले से कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं अबाउट दी हेजिंग टेक्निक्स. कुछ हेज के न्यूमेरिकल करेंगे हम, हेज की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस सेशन इज बेसिकली डिवोटेड टू डूइंग दी प्रैक्टिस सेशन. आप लोग अपने पास कैलकुलेटर्स रखेंगे सो दैट जैसे जैसे मैं आपके साथ कैलकुलेशंस करूंगी यू आर गोइंग टू रीचेक इट कि ये सब चीजें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही. सो let's do the exercises. First of all, first question. Assume that Stevens Point Company has net receivables of 100,000 Singapore dollar in 90 days. The spot rate of the Singapore dollar is $0.50 and the Singapore interest rate is 2% over 90 days. Suggest how the US firm could implement a money market hedge. Let me answer you this question. Question is, assume that Stevens Point Company has net receivables of 100,000 Singapore dollar in 90 days. The spot rate of Singapore dollar is 0.50 and the Singapore interest rate is 2% over 90 days. Suggest how the US firm could implement a money market hedge. Be precise. Answer. The firm could borrow
the amount of Singapore dollars so that the $100,000 Singapore dollars to be received could be used to pay off the loan this amounts to amount कितनी है 100,000 divided by 1.02 it is equal to 1.02 को हमने लिखा है ये जो 1.02 है ना एक्सप्लेन कर देती हूँ 100,000 divided by 100,000 divided by 1 plus I that is 2% है ना ये देखें इसको यूं लिखते हैं तो that is 1.02 अब समझ आ गया अब इसको सॉल्व कीजिएगा 100,000 divided by 1.02 it is equal to 98 so it is equal to इसको डॉलर में कन्वर्ट करें डॉलर का रेट है नाउ कन्वर्ट दिस अमाउंट ये सिंगापुर डॉलर है ना कन्वर्ट दिस अमाउंट टू डॉलर डॉलर का रेट क्या है 0.50 हाफ हो गया ना इसका तो ये हो जाएगा 98 अब ये देखें जो उसका रेट है that is equal to 1 the spot rate of the Singapore dollar is $0.50 यानी डॉलर उसका हाफ है ठीक है ना तो ये इस अमाउंट का हाफ जो है वो डॉलर्स में हो जाएगा लाइक आप उसको हाफ कर दें तो दैट इज इक्वल टू डॉलर अमाउंट इट इज इक्वल टू 49,020 डॉलर्स ये आपकी डॉलर अमाउंट आ गई ठीक है सो द बोरोइंग ऑफ सिंगापुर डॉलर ये मनी मार्केट हेज की एग्जांपल है द बोरोइंग ऑफ Singapore dollars has offset the transaction exposure due to the future receivables in Singapore dollar. So the firm could borrow the amount of Singapore dollars so that the 100,000 Singapore dollar to be received could be used to pay off the loan. This amount to 100,000 divided by 1 plus I that is 0.02 it is equal to 98,039.2 about 98,039 convert it into the dollars तो आप उसको करेंसी जो एक्सचेंज रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे you can get 49,020 या उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये रेट जो है that is 0.50. So the borrowing of Singapore dollar has offset the transaction exposure due to the future receivables in the Singapore dollar. Okay. Now another exercise that is the money market hedge on payables.
पहले रिसीवेबल्स की एग्जांपल दिया, Burman company has net payables of 200,000 Mexican pesos in 180 days. This is example number 2. $180 days. The Mexican interest rate is 7%. Over 180 days, and the spot rate of Mexican pesos is $0.10. Suggest how the US firm could implement be precise. अच्छा जी, assume that the Burman company has a net payables of 200,000 Mexican pesos in 180 days. The Mexican interest rate is 7% over 180 days, and the spot rate of the Mexican peso is $0.10. Suggest how the US firm could implement a money market hedge. Be precise. So let's do the solution. Assume that the Burman company has net payables of 200,000 Mexican pesos in 180 days. The Mexican interest rate is 7% over 180 days, and the spot rate of Mexican pesos is $0.10. Suggest how the US firm could implement a money market hedge. Be precise. अच्छा, US firm जो है वो किस तरह से money market hedge कर सकती है in order to have this transaction hedged through the money market on payables. Payables को किस तरह से hedge करना है? The answer is, if the firm deposited, वो जो मैंने आपको बताई थी ना borrowing और lending possibility, वो क्या थी? Invest in borrow in home currency and then invest in foreign currency for payables. So for payables हमने जो rule पढ़ा था money market hedge के लिए, borrow in home currency एंड नेक्स्ट स्टेप में इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी. डू यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर एक दिन आपको मैंने एक लेक्चर के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पढ़ रहे थे, ये मैंने आपको बताया था कि फॉर पेबल्स बोरो इन होम करेंसी एंड देन इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी. और जब इन्वेस्टमेंट से आपको जो इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, बेसिकली दैट इज द डिफरेंस, जो इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा ये आपका वो अमाउंट आ जाएगा जो आपको एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हो सकता है, उसको कवर करने के लिए. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द मनी मार्केट हैज. आप उसको अपने पेबल्स को हैज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो किस तरह से होगा? इफ अ फर्म डिपॉजिटेड आंसर इज, अगर फर्म डिपॉजिट करा दे मैक्सिकन पेसोस, इसको कैसे कंप्यूट किया? अपने इंटरेस्ट रेट के साथ, ये है
200,000 डिवाइडेड बाय 1.07. 1.07 कैसे निकाला? 0.07 प्लस 1 दैट इज 1.07. इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी. इसको इस तरह से लिख लें, ठीक है. अच्छा जी, देन इसको आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया. The deposit would be pesos at the end of the 6-month period. The amount would then be used to take care of net payables to make the initial deposit the firm would need to. स्टूडेंट्स मैं रिपीट करती हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे, रिपीट करती हूँ. हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं दैट इज अबाउट द मनी मार्केट हैज पेबल्स के ऊपर. हमने उनको एक सोल्यूशन देना दैट हाउ दे कैन यूज द मनी मार्केट हैज इन ऑर्डर टू हैज देयर पेबल्स. पेबल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू फॉलो 2 स्टेप्स, बोरो इन होम करेंसी एंड देन इन्वेस्ट इन इट इन दी फॉरेन करेंसी. अब सिचुएशन ये है कि कंपनी है जिसका नेट पेबल है 200,000 मैक्सिकन पैसोज इन 180 डेज, जिसने उन्होंने 200,000 मैक्सिकन पैसोज को पे करना है 180 डेज में. द मैक्सिकन इंटरेस्ट रेट इज 7% ओवर 180 days and the spot rate is $0.10. Suggest how the US firm could implement a money market hedge. If a firm deposited, कितने डिपॉजिट कराए? 200,000 का इंटरेस्ट रेट के लिहाज से हमने कंप्यूट कर लिया. The amount becomes the Mexican peso 1,86,916 into a Mexican bank earning 7% over 6 months. The deposit would be worth 200,000 pesos at the end of the 6-month period. यानी अगर हम इस अमाउंट को जमा करा दें अपने किसी मैक्सिकन बैंक में, तो वो 7 मंथ्स के बाद हमें एग्जैक्टली वही अमाउंट दे देगा जो हमें पेबल्स के लिए चाहिए, दैट इज 200,000. लाइक हमें देने इस वक्त 1,86,000 एंड 916 रुपीज जमा कराएंगे, जो कि हमारे 200,000 मैक्सिकन पैसोज बन जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स इन 180 डेज. ठीक है ना. तो 6 मंथ्स पीरियड के एंड पे, यानी बजाय इसके कि हम 200,000 दें, अभी हम इस वक्त 1,86,000 रुपया देंगे, जो कि हमारा 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए ऑटोमेटिकली बन जाएगा. सो द अमाउंट वुड देन बी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द नेट पेबल्स. तो जो हमारे पास 200,000 6 मंथ्स के एंड पे आ जाएगा, वो अमाउंट हम यूज कर लेंगे फॉर मेकिंग द नेट पेबल्स. टू मेक द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1,86,906 pesos, the firm would need about $18,692. कैसे? आप उसको 1,86,916 को कन्वर्ट कर लें डॉलर में. हम सिर्फ डॉलर अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ. इट कुड बारो दीज फंड्स. रिपीट करती हूँ दोबारा, बहुत इंटरेस्टिंग और
इजी सी एक्सरसाइज थी। हमने मैक्सिकन पैसोज में 200,000 देने हैं 180 डेज बाद। हम क्या करें, इस वक्त जो हमारा बैंक हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है दैट इज 7% मनी मार्केट के अंदर, हम अपने 200,000 को इस वक्त के कितने बनेंगे, अगर हम 1,86,916 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे तो वो 6 महीने के बाद दैट इज 180 डेज के बाद वो बन जाएगा 200,000 के बराबर। ठीक है, हम जब 6 महीने पूरे होंगे तो हमें 200,000 मिल जाएंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट जनरेट कर ली जो कि हमें बैंक में रखने से उसको मिल गया। आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, जो आपको इंटरेस्ट जनरेट हुआ उससे आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली बराबर होगी। यानी 200,000 की पेमेंट करनी थी लेकिन एक्चुअली आपने 1,86,916 पैसों की आपने इन्वेस्टमेंट की, बाकी आपको इंटरेस्ट से जनरेट हो गया। ठीक है ना, तो अमाउंट आपको कम इन्वेस्ट करनी पड़ी, इंटरेस्ट जनरेट हो गया और 200,000 आपके पास 6 मंथ्स के बाद आ गए। तो 1,86,916 को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें, हमें यहाँ पे रेट गिवन था, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 18,692। तो यानी कि आप ये वाले जो फंड है 18,692 वो यूएस की मार्केट से बोरो कर लें। सो हमारा स्टेप ये था कि वी आर गोइंग टू बोरो इन होम करेंसी, ये होम करेंसी थी डॉलर की, डॉलर में you are going to borrow home currency and then invest it in the foreign currency, that is the pesos इस केस में। So students, this was about the money market hedge, a very interesting example for making the payables। अपने payables की amount को पूरा करने के लिए you are going to use it। Now another strategy which you can use in the transaction exposure is about the invoicing strategy। इनवॉइसिंग स्ट्रेटजी ये क्या होती है? Assume that a company purchases some goods in Chile that are denominated in the Chilean pesos. It also sells goods denominated in US dollar to some firms in Chile. At the end of each month, it has a large net payables position in Chilean pesos. तो हर मंथ के एंड पे ये होता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी नेट पेबल पोजीशन बन जाती है which they have to pay in Chilean pesos, जो कि इन्होंने Chilean pesos में देनी होती है। How can it use an invoicing strategy to reduce this transaction exposure? अब उनकी जो पोजीशन होती है वो इस तरह की होती है कि उनको Chilean pesos में काफी सारी अमाउंट देनी पड़ती है, तो हम उनके लिए कोई कैसी इनवॉइसिंग स्ट्रेटेजी हो कि उनको ये जो करेंसी लॉस है लाइक Chilean pesos में जो उन्होंने पेमेंट देनी है वो उस पे उनको एक्सचेंज रेट लॉस कम से कम हो। So it could invoice its exports in Chile in Chilean peso. The pesos received would then be used to make payment on the imports from the firm in Chile in Chile। अच्छा, अब क्योंकि उनकी पेमेंट्स एक्सपोर्ट्स हैं तो आप उनके लिए आप उनकी टेक्निक ऐसी रखें कि दोनों बोथ इंपोर्ट्स भी और एक्सपोर्ट्स भी दोनों एक ही करेंसी में हो। अगर दोनों एक ही करेंसी में होंगी तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट दी डिफरेंस, और आपको लाइक जिस करेंसी में आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं आप उसी करेंसी में आप इंपोर्ट्स कर लें तो दे विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस। सो आपको इस तरह से एक्सचेंज रेट जो लॉस है वो नहीं होगा। जिस करेंसी में आप बोरोइंग कर रहे हैं जिस करेंसी में आप एक्सपोर्टिंग पेमेंट्स कर रहे हैं उसी करेंसी में आप रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आपकी रिसीट्स और पेमेंट्स एक ही करेंसी में हो जाएं तो बाय कीपिंग दिस इनवॉइसिंग स्ट्रेटजी यू कैन ऑल्सो कीप योर सेल्फ safe from the transaction exposure. So the one limitation is that the Chilean firm may not agree to this, although they likely would if they are willing. Limitations of the invoicing strategy occur if the timings does not perfectly match up. अच्छा, कई दफा ये वाली स्ट्रेटजी यूजफुल नहीं भी होगी क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स की वो टाइमिंग्स ना हो या आपके पेबल्स की वो टाइमिंग्स ना हो जो कि आपकी रिसीवेबल्स की टाइमिंग्स हैं। लाइक योर रिसीवेबल टाइमिंग्स में भी डिफरेंट एज कम्पेयर टू दी पेबल्स। तो उस सूरत में क्या होगा, जाहिर है कि आप इस तरह की इनवॉइसिंग स्ट्रेटजी आपके यूज में नहीं आएगी या आपके लिए यूजफुल नहीं होगी बिकॉज हो सकता है कि कैलेंडर ईयर के पहले 3 महीने में आपकी एक्सपोर्ट्स हैं और आपकी रिसीवेबल्स हैं और आपके आखिरी 3 महीने में आपकी इंपोर्ट्स हैं और आपके पेबल्स हैं। हो सकता है फिर टाइमिंग्स मैच ना करें जिसकी वजह से फिर ये इनवॉइसिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी।
इज दैट क्लियर? और कई दफा ये भी हो सकता है कि आपकी पेबल्स की अमाउंट ज्यादा हो और रिसीवेबल्स की अमाउंट कम हो, लाइक पेबल्स की अमाउंट रिसीवेबल के अमाउंट्स को ऑफसेट ना करे या एक दूसरे के बराबर ना हो. तो अगेन इन दैट वेरी केस the situation is not very attractive for keeping this kind of invoicing strategy. So students, let's do another numerical, that is about the real cost of hedging payables. एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपके लिए, कैलकुलेटर्स आप अपने पास रखेंगे. थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज है लेंथी है. कीप वॉचिंग एंड कीप ऑब्जर्विंग. Assume that the Loras Corporation imported goods from New Zealand and needs 100,000 New Zealand dollars (180 days from now). It is trying to determine the whether to hedge this position Loras has developed the following probability distribution. Of the New Zealand dollar न्यूजीलैंड के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, आप इसको ठीक करें. न्यू जीलैंड, अब ठीक है. अच्छा जी. So assume that there is a Loras Corporation imported goods from New Zealand and needs 100,000 New Zealand dollars 180 days from now. So they need $180 from now, 100,000 New Zealand dollar. It is trying to determine that whether to hedge this position, क्या इस पोजीशन को hedge करना चाहिए या नहीं चाहिए. उसके लिए हम रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग कैलकुलेट करेंगे. न्यूमेरिकल से आपको इतनी बात समझ आ रही है. इट इज ट्राइंग टू डिटरमिन वेदर टू हेज दिस पोजीशन और नॉट. Loras has developed the following probability distributions of New Zealand dollar. यहाँ देखें हमारे पास probability distributions हैं. यहाँ लिखेंगे पहले कॉलम में आया है हमारे पास possible values. डिटरमिन क्या करना है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ. ये हमारा डाटा है, क्वेश्चन का डाटा मैं आपके लिए लिख रही हूँ उस वक्त. $0.40, probability is 5%. Probability is 10%. 0.48, 30%.
0.50, 30%, 0.53, 20%, 0.55, 5%. ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है विद द पॉसिबल वैल्यू ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर इन 180 डेज. आगे चलें. Data continues. The 180 days forward rate of New Zealand dollar is $0.52. The spot rate of New Zealand dollar is 0.49. So you are required to develop a table showing a feasibility analysis of hedging. यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होने दें. क्वेश्चन ही बहुत लंबा है. डेवलप अ टेबल शोइंग द फिजिबिलिटी एनालिसिस फॉर हेजिंग. हम पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस ऑफ हेजिंग करेंगे टेबल बना के. That is determine the possible difference between the costs of hedging versus no hedging. What is the probability that hedging will be more costly to the firm than not hedging? So you are going to determine the possible difference between the cost of hedging versus no hedging, and what is the probability that hedging will be more costly to the firm than not hedging. जो कि हम steps हमने पढ़े थे कि हम hedge करें या ना करें. Determine, वही सारे questions हमारे इस problem में solve होंगे. Determine the expected value of the expected value of the additional cost of hedging. अच्छा जी, अब ये है कि इसमें कि आपने क्या कुछ इसमें कैलकुलेट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप अ टेबल to find out the feasibility analysis of hedging, that is determine the possible differences between the cost of hedging versus no hedging. What is the probability that hedging will be more costly to the firm than not hedging? क्या possibility है कि hedging costly होगी to the firm than not hedging? And also determine the expected value of the additional cost of hedging. Also you need to determine the expected value of the additional cost of hedging. So let's do it. दोबारा से यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो रहा है. हम इसका सोल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो चीज़ें आपके सामने क्वेश्चन के अंदर
दो कॉलम्स का एक टेबल है जिसमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर इन 180 डेज और साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज। इन दोनों कॉलम से हम लोग शुरू करेंगे अपना टेबल बनाना, जिससे हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस करना है। जो पहला हमारा स्टेप है दैट इज टू डेवलप अ टेबल द फिजिबिलिटी एनालिसिस ऑफ हेजिंग। ठीक है, उसके लिए हम पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। possible spot rate of New Zealand dollar then is probability, then is nominal cost of hedging, so then is nominal cost of hedging 100,000 New Zealand dollar, amount of US dollars needed to buy 100,000 New Zealand dollar if firms remain unhedged, if firms यानी विदाउट हेजिंग आप कर लें। एक हमारे पास टेबल आ गया, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ हेजिंग दिस 100,000 न्यूजीलैंड डॉलर एंड दिस इज, आप इसको समझ लें, दिस इज द अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर नीडेड टू बाय 100,000 न्यूजीलैंड डॉलर इफ फर्म्स रिमेन अनहेज्ड, फर्म्स रिमेन then is real cost of hedging. ये आपके थे स्पॉट रेट्स, प्रोबेबिलिटीज 5%, 10%, 30%, 20%, सॉरी 30% अगेन, देन 20% एंड लास्ट में था 5%। अच्छा जी, व्हाट इज द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ हेजिंग 100,000 डॉलर। यहाँ देखिए दी 180 डेज फॉरवर्ड रेट ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर इज 0.52। ठीक है, तो 0.52 और हमारे 100,000 डॉलर है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू 100,000 इंटू 0.52। यहाँ पे एक दफा मैं लिख देती हूँ आपके लिए, 100,000 इंटू 0.52, दैट मेक्स 52,000। सो दिस इज द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ हेजिंग 100,000 डॉलर्स को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 52,000, जो कि सबके लिए सेम रहेगी। अगेन सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनके लिए सेम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाए, द अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर नीडेड टू बाय 100,000 इफ इट रिमेन्स अनहेज्ड। अब प्रोबेबिलिटीज के साथ सारे डॉलर अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यू विल गेट दी अमाउंट। अगर तो ये वाला रेट है दी स्पॉट रेट, उसका फॉरवर्ड रेट ऑफ न्यूजीलैंड, तब तो आप 52,000 सारे कर लें। दी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ हेजिंग से ही आ जाएगी। विदाउट हेजिंग से वो आएगी जो आपका पॉसिबल स्पॉट रेट है विद दिस प्रोबेबिलिटी। उससे आप इन सारी अमाउंट्स को आप डॉलर में कन्वर्ट कर लें। 0.50 का मतलब है 40,000। ठीक है, 0.50 का मतलब है 40,000। कैसे? 0.40 इंटू 100,000 ये आएगी। ठीक है, ये जो आपकी अमाउंट्स है ना, ये वाली इस कॉलम में
इसको आप 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इफ इट रिमेन अनहेज्ड। प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यार, जितना स्पॉट रेट आएगा उसी से आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो 0.40 इंटू 100,000 40,000, 0.45 into 100,000 45,000, 0.48 into 100,000 48,000, then is 0.50 से 50,000, 53 से 53,000 और 55 प्रोबेबिलिटी से 55,000। ठीक है ना। आप ये देखें, अगर हम इसको अनहेज रखेंगे, हो सकता है कि किसी वक्त हमारी वैल्यू कम भी हो, लेकिन किसी वक्त हमारी ज्यादा भी होती है। ठीक है ना। अगर हम इसको हेज नहीं, लेकिन अगर हम उसको हेज कर लेते हैं तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉलम में आपकी सारी अमाउंट्स इक्वल रहती हैं, क्योंकि आपने हेजिंग जो कर ली। हेजिंग से मतलब यह है कि आपने उनको एक रेट के ऊपर, मिनिमम रेट के ऊपर आपने उसको बुक कर लिया या आपने उसको लॉक इन कर लिया, तो अब आपको रिस्क नहीं है। हेज से मतलब यह है कि आपने अपने रिस्क को हेज कर लिया, आपने अपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। अब रियल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा इन दोनों की। रियल कॉस्ट का मतलब यह है कि नॉमिनल कॉस्ट विद हेजिंग माइनस नॉमिनल कॉस्ट विदाउट हेजिंग। ठीक है ना। सो नॉमिनल कॉस्ट विद हेजिंग इज 52,000 लेस नॉमिनल कॉस्ट विदाउट हेजिंग। हम इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग। 52,000 लेस 40,000 12,000, 52,000 less 45,000 7,000, 52,000 less 48,000 4,000, 52,000 लेस 50,000। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में करने की जरूरत नहीं है। 2,000 52 से 53 निकालेंगे 1,000 माइनस 52 से 55 निकालें 3,000 माइनस। ठीक है, ये आपके पास आ गई रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग, दैट इज 12,000 7,000 4,000 2,000 1,000 माइनस 1,000 एंड माइनस 3,000 विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अब क्या है, अब प्रोबेबिलिटी बताएंगे कितनी है। देयर इज 75% प्रोबेबिलिटी दैट हेजिंग विल बी मोर कॉस्टली देन नॉट हेजिंग, यानी 25% ये और 75% ये। सो आप लिखेंगे इसको, आंसर इज, हमने कहा था कि अगर रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग माइनस हो तो इट इज मोर फेवरेबल टू हेज एज कंपेयर टू नॉट टू hedge. So hedging is more favorable if the real cost of hedging is negative. So answer is, there is a 75% probability that hedging will be more costly than no hedge. So there is 75% probability that hedging will be more costly than no hedge. So ये जितनी भी आपकी probabilities हैं इस कॉलम में आप उनको real cost of hedging से multiply करेंगे और आप उसको sum कर लेंगे, summation of all the probabilities with the real cost of hedging। इस कॉलम का कॉलम 2 को 5 से multiply करेंगे, यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे 5% प्रोबेबिलिटी, उसकी कॉस्ट कितनी है 12,000 प्लस 10% 7,000 प्लस 30% 4,000 प्लस 30,000 2,000 प्लस 20% माइनस 1,000 प्लस 5% माइनस
3000। ठीक हो गया, आगे चलें। 5% का मतलब है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 12,600। 10% का मतलब है 0.10 इंटू 7,700 प्लस 30% इंटू 4,000, 0.30 इंटू 4, 1200 0.30 इंटू 2,600 माइनस कर लें इसको क्योंकि नेक्स्ट का आंसर माइनस में आने वाला है। 0.20 इंटू 1,000, 200 अगेन माइनस 0.05 इंटू 3,000, 150। अब इसको सॉल्व कर लें सारे को। 600, 700, 1200, 600, 200, 150. It is equal to $2,750. So this is the expected value of the additional cost of hedging. और हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारा आंसर ये है कि 75% probability है that hedging will be more costly than not hedging. So dear students, this was about this numerical. Now some of the benefits of hedging. If the hedging is expected to be more costly than not hedge, then why would a firm even consider hedging? अच्छा, हम बात करते हैं hedging की। तो if the hedging is expected to be more costly, अगर हम यही समझते हैं कि hedging जो है that is more costly than to be not hedging, then why should a firm even consider hedging? फिर भी फर्म को hedge करने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? उसका आंसर ये है कि firms often prefer knowing what their future cash flows are as compared to the uncertainty involved with an open position in a foreign currency. Thus, they may be willing to hedge even if they expect the real cost of hedging is positive. इसलिए रियल अगर उनकी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग पॉजिटिव भी हो, इवन देन दे वुड लाइक टू हैव दिस हेजिंग पॉसिबल. लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग पेबल्स के हवाले से. Assume that Suffolk Company negotiated a forward contract to purchase 200,000. स्टूडेंट्स आप भी अपने पास न्यूमेरिकल लिख लें जितनी देर में मैं लिख रही हूँ, ताकि आप भी अवेयर हो जाएंगे व्हाट इट इज ऑल अबाउट. पाउंड इन 90 days. The 90-day forward rate was $1.40 per British pound. The pounds to be purchased were to be used to purchase British supplies
On the day the pounds were delivered in accordance with the forward contract the spot rate of the British pound was what was the real cost of hedging payables? For this US firm. Answer: the US dollar paid when hedging $1.4 into 200,000 is equal to, इसको मल्टीप्लाई करें 1.4 into 200,000 2,80,000. The dollar paid if unhedged $1.44 into 200,000 2,88,000. ये दोनों अमाउंट्स आपके पास आ गई. सो द रियल कॉस्ट इज दोनों का डिफरेंस. द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग पेएबल्स, दोनों अमाउंट्स मैंने निकाल लिया. इनका डिफरेंस हो जाएगा with hedging and without hedging 000. ये हो जाएगा 8,000 सॉरी. माइनस 8,000 नेक्स्ट में आ जाए. द US डॉलर पेड व्हेन hedging $1.40 the dollar paid if unhedged $1.34 into 200,000 1.34 into 200,000 268,000. The real cost of hedging payables अब फिर दोबारा इन्हीं दो अमाउंट्स को लेस कर लें. 280 268,000 जैसे पहले किया था. इफ रिमेन अनहेज्ड एंड इफ रिमेन हेज्ड, इन दोनों का डिफरेंस इट इज इक्वल टू लेस. तो स्टूडेंट्स देखें ये आ गई अमाउंट आपकी 12,000. एक अमाउंट आपकी आ गई है, एक अमाउंट आपकी आ गई ये. सो द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग पेएबल इज the hedge if you want to hedge if it is hedged and the difference when it is unhedged.
So dear students, this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed doing exercises. Practice them more. They are really useful for your firms, especially when you want to take this decision that whether you should hedge your firm or not. We did a number of other exercises. I shared with you the unanticipated transactions, hedging exposure, and gave you certain ideas on that whether you should over hedge risk or not. So dear students, this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it fully. See you next time, inshallah. Take care and Allah Hafiz.